Okay, good afternoon, everyone. आप सभी को शुभ दोपहर। So, yesterday we covered a lot of content. कल हमने बहुत कुछ इसमें सीखा। Okay, so we spoke about. Okay, settle down, settle down. आप लोग बैठ जाइए जल्दी से। We spoke in chapter 7, we spoke about John chapter 4, 7वें अध्याय में हमने यूहन्ना 4थे अध्याय के बारे में बात की and we saw that how Jesus had this conversation with the Samaritan woman तो हमने देखा कि किस प्रकार यीशु की बातचीत उस सामरी स्त्री से हुई and how he was able to have a divine setup at that moment. और किस प्रकार वहाँ पे एक ईश्वरीय व्यवस्था वहाँ पे होने के योग्य हुई थी, Even though there was many differences between them, जबकि उन दोनों के बीच में बहुत सारे अंतर भी थे, but Jesus was able to talk to them. लेकिन यीशु मसीह उससे बात करने पाया था। Jesus was able to break all those differences and speak to the Samaritan woman. और यीशु मसीह जो भी अंतर थे उन्हें तोड़ के वो उनसे बात करने के योग्य हुआ। Then we also saw that Jesus was able to connect with the Samaritan woman. तो हम उसके बाद ये भी देखते हैं कि यीशु मसीह जो सामरी स्त्री थी उसे सुधार भी पाए। Remember, she came to fill water. तो याद है कि वो पानी भरने आई थी Jesus was feeling thirsty, और यीशु मसीह प्यासे थे and so he said, "Can you give me some water?" और वो कहते क्या मुझे पानी दे सकती हो। And he was able to connect on the same point of need. तो जो वहाँ पे एक दूसरे की दोनों की जरूरत थी उससे वो जोड़ पाए थे। Okay, those online, just make sure your audio is muted because every time it unmutes, it disturbs here, right? तो ऑनलाइन लोग ध्यान रखें कि आपका ऑडियो है वो म्यूट रखें। All right. Then we see that Jesus was able to impact that woman's life. तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो यीशु मसीह सामरी स्त्री के जीवन पे प्रभाव डालने पाए। What did he do? क्या किया He उन्होंने? spoke a word of knowledge. और ज्ञान का शब्द बोला। He said, "No, you have been married 5 times, and the man that you're with is not even your husband." तो उन्होंने कहा कि तुम 5 बार शादी कर चुकी हो लेकिन जो जिसके साथ हो वो भी तुम्हारा पति नहीं है। Right? And that made such a change in her heart. तो इसी बात ने उसके हृदय में बहुत बदलाव लेके आया। It impacted her so much तो ये उसको इतना प्रभावित किया that she went on to share the gospel with her own people in her own city and her town. कि वो जाके अपने शहर में अपने लोगों से उस सुसमाचार का प्रचार उसने किया। Right? Then we also talked from chapter 8. In chapter 8, तो फिर 8वें अध्याय में we talked about the great apostle Paul. तो हमने जो महान प्रेरित पौलुस है उसके बारे में बात की। Acts chapter 17. प्रेरितों के काम 17 अध्याय। Everyone understood that whole story? सब कोई समझ गए उस पूरी कहानी को? Yes. Where do they go? वो कहाँ जाते हैं? Athens. And in Athens there's idol worship, there is immorality, there's all kinds of gods that people are believing at that time. तो वहाँ एथेंस में था कि बहुत सारी मूर्ति पूजा थी और बहुत सारे अलग अलग लोग थे जो विश्वास कर रहे थे और चीजों पे। And Paul went there. और पौलुस वहाँ गया, He shared the gospel. सुसमाचार को बांटा। So yesterday we saw some important points. तो हमने कल कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखे थे। He said, "You are a very religious people." तो वो कहता है कि तुम बहुत ही धार्मिक लोग हो। So he saw that they were spiritual people. तो उसने देखा कि वो लोग आत्मिक लोग थे He appreciates them. और वो उन्हें सराहना करता है उसकी। Then he said, "Some of your own poets have written." और उसके बाद वो कहता है कि तुम्हारे ही कवियों ने लिखा हुआ है। He made an effort to understand their culture. और उनकी संस्कृति को सीखने का पौलुस ने मेहनत की। Right? And after this whole encounter, और इस सारी बातचीत के बाद there were 3 responses. तो वहाँ पे 3 जवाब थे। Some people said, "We don't know what you're talking about. You're mad." कुछ लोगों ने बोला कि हमें नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम पागल हो। Some people said, "We want to hear some more." और कुछ लोगों ने बोला कि हम और सुनना चाहते हैं। And then there were some people who believed in the message. और वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उस संदेश पे विश्वास किया। And some of them who believed the gospel and became believers were people who were leaders in the council. और उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने विश्वास किया तो जो वहाँ पे सभा होती थी उसके वहाँ बड़े बड़े लोग थे। This is a very important lesson for us. तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। Why? क्यों?
Because there was no signs, wonders and miracles. क्योंकि वहाँ पे कोई चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम No, नहीं हुए no थे, prophecy. कोई भविष्यवाणी No नहीं word थी, of knowledge. कोई ज्ञान का शब्द नहीं, It was simple gospel. वो साधारण सुसमाचार था, Just understanding and talking. बस समझना और बात करना। Because sometimes we may say, hey, I don't have any gift. तो कई बार हम ऐसा बोलेंगे कि हमारे पास कोई वरदान नहीं है, I don't know how to pray for healing. और हमें नहीं पता कि चंगाई के लिए प्रार्थना कैसे I don't करना have है, the gift of word of knowledge. और मेरे पास वो ज्ञान का शब्द होता है वो और- वरदान नहीं है, I've not, given a prophecy before. और मैंने कभी पहले भविष्यवाणी नहीं दी है। So those things can stop us at times. तो वो सारी चीजें हमें रोक सकती हैं। But what did Paul do? लेकिन पौलुस ने क्या किया? No miracles, कोई चमत्कार नहीं, no signs and wonders. कोई चिन्ह और अद्भुत कार्य नहीं, Just the simple gospel. बस साधारण सुसमाचार। But he used his mind. लेकिन उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल He किया, shared the gospel. उसने सुसमाचार को बांटा, The Holy Spirit worked in the people's lives. और पवित्र आत्मा ने लोगों के जीवन में कार्य किया, And people became believers. और जो लोग थे विश्वासी बन गए। So even you and I, we can share the gospel. तो हम और आप भी हम सुसमाचार बांट सकते हैं, Don't wait to become pastor. और पास्टर बनने का इंतजार ना करें, Share the gospel. सुसमाचार बांटे, Leave the results to God. और जो वहाँ का परिणाम है वो परमेश्वर के ऊपर छोड़ दें। Okay. So we stopped here. तो हमने यहीं पे रोका था, Let's pick up from there. तो आइए वहीं से हम शुरू करेंगे। Let's look at a few things, few additional things on how Paul ministered. तो कुछ और बातें जो जिस प्रकार से पौलुस ने वहाँ सेवकाई की उन्हें हम देखेंगे। Firstly, पहली चीज, see that Paul preached Christ and the cross of Jesus Christ. पौलुस ने मसीह का प्रचार किया और यीशु के क्रूस का प्रचार किया। He didn't come there and say about his testimony. वो सिर्फ वहाँ पे अपनी गवाही कहने के लिए नहीं आया, He didn't say, I went to first missionary journey. This is my second missionary journey. और वो आया और उसने ऐसा नहीं कहा कि वो मेरी पहली सेवकाई यात्रा थी, ये मेरी दूसरी है। He didn't say, I know all the law. I'm in Judea and everything. I know everything. और उसने ऐसा नहीं कहा कि मुझे सारा नियम पता है, मैं यहूदिया में हूँ, सब कुछ मुझे पता है। He didn't speak anything. उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। All he preached was the cross of Jesus Christ. सिर्फ जितना प्रचार किया वो ये था क्रूस के बारे में। That's the power of the cross. तो यही क्रूस की सामर्थ है। The gospel is the power of God unto salvation. और जो सुसमाचार है वो परमेश्वर के उद्धार के प्रति उसकी सामर्थ है। So wherever we are ministering, तो जहाँ कहीं भी हम सेवकाई कर रहे हैं, bring in the cross. वहाँ पे क्रूस को लेके आए, Bring in what Jesus did. उस बात को लेके आए जो यीशु ने किया। Don't focus on yourself. सिर्फ अपने आप पर ही वहाँ ध्यान ना Or दें, don't focus on the ministry that people are doing. और जो सेवकाई लोग कर रहे हैं उस पे ध्यान ना दें, Focus on the cross. क्रूस पे ध्यान करें। That will change people's lives. तो वही लोगों के जीवन को बदलेगा। Then we also see that Paul began to understand and reason with the people. तो उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जो पौलुस है वो समझने लगा और उनके साथ बातचीत करने लगा। Reasoning is important. और जो तर्क करना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। That's what Paul did here. तो वही पौलुस ने यहाँ पे He किया। stood in front of everyone वो सबके सामने खड़ा हुआ and he was reasoning with them. और वो उन लोगों से बात कर रहा था। See, I see you all are very spiritual. तो वो कह रहा है कि मैं देखता हूँ कि तुम बहुत आत्मिक हो, Very good. बहुत अच्छी बात He's है। reasoning with them. तो वो उन लोगों के साथ बात कर रहा Then है। he's saying, I saw one statue to an unknown God. तो फिर कहता है मैंने एक मूर्ति देखी जो अनजाने परमेश्वर के लिए लिखी हुई। Let me tell you who that unknown God is. तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो अनजाना परमेश्वर कौन है। See what's happening? He's reasoning with तो यहाँ them. पे क्या हो रहा है, वो लोगों से तर्क कर रहा है। It's very important to understand the culture, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम उनके संस्कृति को समझें, understand a religion, उनके धर्म को समझें, and then reason with them. और तब उनके साथ बातचीत करें। Right? So, for example, when we come to, from South India, if we go to North India or any other place, तो उदाहरण के लिए जब दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत में जाते हैं the culture is very different, no? तो वहाँ की जो संस्कृति है बहुत अलग है। Right? Now, you all are here. तो अभी सब आप यहाँ पे हैं, You'll be thinking, why it's like this? Something is different here. आप लोग ऐसा सोचेंगे कि ऐसा क्यों है, यहाँ पे कुछ अलग है। But for us, this is how it is. लेकिन हमारे लिए ऐसा ही है ये, We grew up here. हम यहीं पे बड़े हुए। Now, when we come to North India, लेकिन जब हम उत्तर भारत में आते for us, हैं the culture is very different. तो हमारे लिए संस्कृति बहुत अलग है। Right? So, I have to understand. See, in North India, men sit in one place, girls sit in तो another. उत्तर भारत में क्या होता है कि जो भाई लोग एक साथ बैठते हैं, बहन लोग एक साइड। Here, nobody cares. तो यहाँ पे कोई चिंता नहीं करता। Right? It's different. The culture is different. तो जो संस्कृति है वो अलग है। Right?
In North India, you have to cover your women have to cover their head. और उत्तर भारत में जो है महिलाओं को अपने सिर को ढकना होता है, Here, we don't do it. और यहाँ पे हम नहीं करते। North India, they take out the shoes and go into the church. और उत्तर भारत में हम हमारे जूता चप्पलों को उतार के हम जब कलीसिया में जाते हैं, But here we don't do that. तो यहाँ पे हम नहीं करते। The culture is different. तो जो संस्कृति है वो अलग है। So doesn't mean if you don't take out shoes, that means we are disrespecting God. तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि अगर हम हमारे जूतों को नहीं उतार रहे हैं तो हम परमेश्वर का अनादर कर रहे हैं। Doesn't mean if women don't cover their hair, that means they're disrespecting God. और यदि महिलाएं अपने सिर को नहीं ढक रही तो ऐसा मतलब नहीं है कि वो परमेश्वर का अनादर कर रही It's a हैं। cultural difference. ये सिर्फ संस्कृति का अंतर है। Right? What is the culture people have been following? They are following for many years. तो जो भी संस्कृति लोग उसका पालन करते हुए चले आए वो कर रहे हैं सालों से। The same way, तो उसी तरह when we are ministering to people, learn to understand their background and their culture. Where are they from? जब हम लोगों के साथ लोगों की सेवकाई करते हैं तो उनकी पृष्ठभूमि को या उनकी संस्कृति को समझें, Because if I don't understand, I may say something which can hurt them. क्योंकि यदि हम नहीं समझेंगे तो शायद हम कुछ ऐसा बोल देंगे तो जो जिससे उन्हें चोट पहुंचे। Imagine I come to North India तो कल्पना करें कि हम उत्तर भारत में आते and I हैं say, hey, why are you taking out the shoes? और हम बोलें कि आप अपने जूतों को क्यों उतार रहे हैं, And I start, arguing. और फिर बहस करना शुरू करें, Is it of any use? तो क्या इसका कोई फायदा है? There's no use of winning that argument. कोई फायदा नहीं है उस बहस को जीतने का। The point is, we want people to accept Jesus Christ. We want people to grow in the Lord. That is the point of us coming to North India. तो हमारा बिंदु ये है उत्तर भारत में आने का, बात ये है कि लोगों को हम देखें, वो मसीह को स्वीकार करें और मसीह में बढ़ें। See, many years ago, I went to Andhra Pradesh. और तो कई साल पहले वो आंध्र प्रदेश में गए पास्टर जी। I was just starting off in, ministry. तो वो सेवकाई में शुरुआत ही कर रहे थे उन दिनों में। And this is a small village in the deep villages of Andhra Pradesh. तो आंध्र प्रदेश में एक छोटा सा गांव था, It's a small church, 50, 60 people, तो वहाँ पे छोटी सी कलीसिया थी 50-60 लोगों के साथ, simple people, साधारण लोग, just sharing the simple word. और वे साधारण वचन वहाँ पे बांट रहे थे। On the last day, और आखिरी दिन में, on the 3 days conference, last day, 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में लास्ट दिन में, they said, we have to wash your feet. तो उन्होंने कहा कि हमें तुम्हारे पैरों को धुलना है। I said, for what? तो पास्टर जी ने बोला क्यों? I said, no, you can't wash my feet. तो उन्होंने कहा नहीं, तुम मेरे पैरों को नहीं धुल They सकते। said, no, we have to do it. तो उन्होंने कहा नहीं, हमें ये करना ही है। I was feeling very uncomfortable. तो बहुत ही असुविधाजनक लग रहा But था। for them, पर उनके लिए, their culture, उनकी संस्कृति, they have to wash the preacher's feet. उनकी संस्कृति ऐसी कि जो प्रचारक होते हैं उनके पैरों को धुलते हैं। So first I said, no, don't do it. I don't want to come for तो all पहले this. तो बोला कि नहीं धुलवाना, मैं नहीं आऊंगा। But they felt very bad. तो उन्हें बहुत बुरा महसूस हुआ। But here, nobody will forget about feet. Nobody will wash a hand. लेकिन यहाँ पर पैर की बात तो दूर है, कोई हाथ भी नहीं धुलेगा, Nobody cares. कोई चिंता नहीं करता। It's different. It's cultural. तो ये अलग है, ये संस्कृति है। Then they woke me up at 4 o'clock in the morning. तो उसके बाद फिर 4 बजे सुबह को उठा दिया। They said, Pastor Ji, you come. तो उन्होंने कहा पास्टर जी आप आइए। There was a goat hanging upside down. और एक बकरी थी जो ऊपर से नीचे लटकी हुई थी। They said, you have to cut the goat. तो उन्होंने कहा इसे आपको काटना है। That's only blessings. तो यही आशीष है। Now here, if you go to the shop, you will get. तो यहाँ पे यदि आप दुकान पे जाएंगे तब पाएंगे। But they said, that is blessing. You are the main speaker. You have to cut. तो उन्होंने कहा आप प्रचारक हैं, आपको ही काटना है। You see what happens? Culture. तो आप देख रहे हैं संस्कृति। Right? So different states in our nation also will have different cultures. तो हमारे देश में जो अलग अलग राज्य हैं उनकी अलग अलग संस्कृति होंगी। When I went to Ajmer, तो जब अजमेर गए they gave me one chicken. तो एक चिकन दिया वहाँ पे। You know what is chicken? What is chicken in Hindi? मुर्गा। They gave one chicken. तो एक मुर्गा दिया। I reached the church, they gave one chicken. और जब वो कलीसिया पहुंचे तो उन्हें मुर्गा दिया। They said, Pastor Ji, आज यही खाना है. तो उन्होंने कहा पास्टर जी आज यही खाना है। So they wanted me to hold the chicken at least. तो वो चाहते थे कि कम से कम मैं उसे पकड़ूं। See, different villages, different towns, different cities, we all have different cultures. तो अलग अलग गांव के, अलग अलग शहर के, सबके अलग अलग संस्कृतियां होती हैं। If I don't understand them, तो यदि हम उन्हें नहीं समझते then we will take offense. तो फिर हमें वहाँ बुरा लगता है।
But if we can understand them, तो यदि हम उन्हें समझ सकते we'll हैं be able to reason with them. तो हम उनके साथ बातचीत करने के योग्य होंगे। Amen. आमीन। One of the things we've noticed is you'll learn more in the course on the Holy Spirit. और जो पवित्र आत्मा का विषय है उसमें और सीखेंगे हम इस बारे में। Sometimes we feel Holy Spirit comes, we have to scream and shout. और तो कभी कभार हमें क्या लगता है कि जब पवित्र आत्मा आता है तो हमें चिल्लाना होता है, जोर से बात करनी होती है। And sometimes we clap hardly, we shake, we shout, and we fall. तो कई बार हम तालियां बजाते हैं, जोर से पूरा हिलते हैं और गिर जाते हैं। Doesn't matter. तो इससे कोई मायने नहीं रखता। See, we must understand that sometimes the Holy Spirit will just speak to us very softly, very silently. तो हमें ये समझना चाहिए कि कभी कभार पवित्र आत्मा हमसे बहुत ही धीमी आवाज में बात कर सकता है। So sometimes even in our understanding, our learning of the scriptures, our understanding is very different. तो कभी कभार हमारे वचन को समझने की भी जो समझ होती है वो बहुत अलग होती है। So very important. तो बहुत जरूरी, When you're ministering to other people, जब आप दूसरे लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं, understand them, उन्हें समझें, reason with them, उनके साथ तर्क करें you can debate them, और वहाँ पे बातचीत करें, ask questions, प्रश्नों को पूछें, but don't get into an argument. लेकिन किसी प्रकार की बहस में ना पड़े। If you get into an argument, you have lost that person. तो यदि आप वहाँ बहस में पड़ जाते हैं तो आप उस व्यक्ति को खो देते हैं। It's better to keep quiet and move on. तो ये बेहतर है कि शांत रहें और आगे बढ़ें, Don't get into an argument. बहस में ना पड़ें। Okay? So let's look at how you and I can minister to a Hindu and a Muslim. तो आइए अब देखें कि हम और आप किस प्रकार से एक मुसलमान और हिंदू के साथ सेवकाई कर सकते And we're going हैं। to look at a few points. तो हम यहाँ पे कुछ बिंदुओं को देखेंगे। Now, God can speak to people in many different ways. अब परमेश्वर लोगों से बात कर सकता है बहुत सारे तरीकों में, But this is just some guidelines for us to learn. लेकिन यहाँ पे सिर्फ कुछ निर्देश दिए गए हैं हमारे सीखने के लिए। So, what are some points we can emphasize while speaking to a Hindu? तो पहली चीज कौन सी कुछ बातें हैं जो हम सीख सकते हैं जब हम हिंदू से बात करते हैं। Firstly, the existence of sin and evil. पहली चीज बुराई और पाप का अस्तित्व। Now, the Bible teaches that sin and Satan and evil and suffering has come from the devil. तो बाइबल हमें सिखाती है कि जो पाप है और जो बुराई है वो सारा शैतान से आया है। But in Hinduism, karma and reincarnation is what they believe in. लेकिन हिंदू में कर्म और पुनर्जन्म का वो ऐसा विश्वास करते What हैं। does that mean? इसका मतलब क्या है? I will do my best. I will work hard. मैं मेरा सबसे बेहतर करूंगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा, I'll live a good life. एक अच्छा जीवन जीऊंगा, If I die और यदि मैं मर गया and still God is not happy, I'll become something else. और यदि फिर भी परमेश्वर खुश नहीं है तो मैं कुछ और बन जाऊंगा। So I can become an animal. तो मैं कोई जानवर बन सकता I हूँ, can become a different human being. कोई दूसरा मनुष्य बन सकता हूँ, I can become a cockroach. कोई कॉकरोच बन सकता हूँ, I can become a donkey. कोई गधा बन सकता हूँ। It's the same old circle. तो ये पूरा एक घूमता रहता है व्रत की तरह। But till this is in Hinduism, it is till you reach perfection. और हिंदू लोगों में ऐसा होता है जब तक तुम सिद्धता पे ना पहुंच जाओ। Right? Secondly, दूसरी चीज forgiveness and karma and reincarnation again. और जो दूसरी चीज है कि क्षमा और फिर से कर्म और वो पुनर्जन्म। Now the Bible teaches us that if you confess your sins, He is faithful and just to forgive you. और बाइबल हमें सिखाती है कि यदि हम हमारे पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करता है। Forgiveness is a gift from God. और जो क्षमा है वो परमेश्वर से एक वरदान It's गिफ्ट a है, free gift given to us. वो हमारे लिए मुफ्त में दिया हुआ है। All we have to do is believe it, have faith, and receive it. हमें सिर्फ इतना करना है कि विश्वास करें और उसको माने। But in Hinduism, लेकिन हिंदुओं में it is almost impossible to receive forgiveness of sins. और पापों की क्षमा पाना ये बहुत ही असंभव बात है। Actually, not only Hinduism, there is no other religion in the world that provides for forgiveness of sins. और सिर्फ हिंदू लोगों में ही नहीं, बाकी जो बहुत सारे धर्म है किसी में भी ऐसा नहीं है कि जो हमारे पापों की क्षमा हमें प्राप्त कराए। What about Islam? और इस्लाम के बारे में क्या? There's no forgiveness of sins. कोई क्षमा नहीं है पापों If की। Allah decides, then I will go to heaven. If not, no. और यदि अल्लाह निर्णय लेते हैं तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा, यदि नहीं तो नहीं। So, what is so unique about Christianity? तो मसीहत के बारे में सबसे हटके क्या है? We have forgiveness of sins. हमें हमारे पापों की क्षमा मिलती है। Whether you are Hindu, Muslim, Buddhist,
Sikh, whatever religion. चाहे आप हिंदू, मुसलमान, सिख, कुछ भी किसी धर्म के हैं, Every religion believe in sin. हर एक धर्म जो है वो पाप में विश्वास So करता the है। moment you say Jesus can forgive your sins, there's something there. तो जिस घड़ी आप कहते हैं कि यीशु तुम्हारे पापों को क्षमा करता है, तो वहां पर कुछ है। So here in Christianity, we all can receive forgiveness of sins. तो यहाँ मसीहत में हम सब कोई हमारे पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते We don't हैं। have to do any work. हमें उसके लिए कोई कार्य नहीं करना होता है। But in Hinduism and other religions, लेकिन हिंदू लोगों में और जो बाकी धर्म है उनमें they have to do a lot of work. उन्हें बहुत सारे कार्य करने होते हैं। They have to hit themselves. उन्हें खुद को पीटना होता They है, have to go to a certain place. उन्हें किसी स्थान पे जाना होता है, They have to sacrifice their bodies. और उन्हें खुद की शरीर का बलिदान देना You know, होता in है। the early 1500s, और पुराने जमाने में 1500 टाइम पे during there was the Sati movement. और एक सती प्रथा थी। When the husband, especially in India, when the husband dies, और ऐसा था कि जब किसी का कोई पति मर जाता है, the wife should go and jump into the fire और तो जो उनकी पत्नियां होती थी उन्हें जाके उसी आग में वहां जलाना होता था खुद को। because they believe that if she jumps in the fire, both will be reincarnated again. तो उनका ऐसा मानना था कि यदि वो आग में जाके खुद को जलाएंगी तभी दोनों का पुनर्जन्म होगा। Then they would kneel down on glass pieces and go up, a temple or any other place. और उसके बाद वो कांच के जो टुकड़े होते थे उन पे घुटनों पे जाके आगे आगे चलते थे। Why do they do all this? क्यों करते थे वो ऐसा वैसा? Because they know that they are sinners क्योंकि वो जानते हैं वो पापी हैं and they need forgiveness of sins. और उन्हें उनके पापों की क्षमा चाहिए। But what do you and I do? लेकिन हम और आप क्या करते हैं? What should you do for forgiveness of sins? What should I do? आपको और हमें हमारे पापों की क्षमा के लिए क्या करना चाहिए? Should we go anywhere? क्या हमें कहीं जाना चाहिए? Should we go to Jerusalem? क्या यरूशलेम जाना चाहिए? All we have to do is just pray and say, Lord Jesus, please forgive me. हमें सिर्फ इतना करना होता है कि बोले यीशु मसीह कृपया मुझे क्षमा करें। No works. कोई कार्य नहीं। Jesus will not say, go read the New Testament one full time and then come back to me. और यीशु मसीह ऐसा नहीं बोलेंगे कि पहले जाओ नया नियम पूरा पढ़ो एक बार में, उसके बाद मेरे पास आओ। Jesus will not say, it's too late. और यीशु मसीह कभी नहीं कहेंगे अब बहुत देर हो गई है। Jesus will not say, the same sin you did last week, again you're coming back today. और यीशु मसीह कभी नहीं कहेंगे कि जो पाप पिछले हफ्ते किया था फिर से उसी के साथ आ रहे हो। You and I have forgiveness of sins. हमारे और आपके पास पापों की क्षमा है। The best thing that we can do is run to Jesus. और सबसे बेहतर बात हम कर सकते हैं तो वो है यीशु के पास दौड़ना। See the difference here? यहाँ पे अंतर आप देख रहे हैं। That's why when you speak to a Hindu, they don't understand forgiveness of sins. तो इसीलिए जब आप किसी हिंदू से बात करें तो वो नहीं समझते पापों की क्षमा के बारे They'll में। say what I should do. तो वो बोलेंगे कि हमें क्या करना If चाहिए। you tell them just pray and believe Jesus, they'll say it's not enough. और यदि आप बोले कि सिर्फ प्रार्थना करो यीशु में विश्वास करो तो वो सोचेंगे कि ये काफी नहीं है। Because that religion is a lot of works. क्योंकि वो लोग बहुत सारे कार्य करते हैं। Is God happy now? कि क्या परमेश्वर खुश है? I'll go to that temple. I'll go to this place of worship. I will sacrifice my body. Is God happy now? मैं उस मंदिर में जाऊंगा, मैं इस जगह पे जाऊंगा या मेरे शरीर को बलिदान दूंगा तो क्या परमेश्वर अब मुझसे खुश होगा? So there's a big difference there. तो यहाँ पे बहुत बड़ा अंतर है। Then we see Christ contrasted with other avatars. तो हम उसके बाद ये देखते हैं कि जो मसीह है वो बाकी जो अवतार हुए लोग उनके साथ जोड़ा जाता है। Now in Hinduism, और हिंदू लोगों में there are many avatars of God. परमेश्वर के वहाँ भगवान के बहुत सारे ऐसे अवतार हुए And हैं। I'm sure many of us know those different, there are different gods that they worship. और शायद हम जानते भी होंगे बहुत सारे भगवान जिन्हें वो पूछते हैं। There'll be a God of blessings, और कोई भगवान उनके आशीष का भगवान God होगा of financial blessing, और उनकी आर्थिक स्थिति की भगवान, for material blessings, और जो साधारण चीजें होती है उनका, another one for good health, और दूसरा कोई अच्छे स्वास्थ्य का, another one for peace. और दूसरा कोई शांति का। Different avatars of God. तो बहुत सारे रूप, बहुत सारे अवतार वहाँ होते हैं। But in Christianity, लेकिन मसीह में the Lord Jesus is so unique that is not there in any other religion. यीशु मसीह सबसे हटके है जो कि किसी और धर्म में नहीं है। He was unique, वो हटके था sinless, और पापहीन था, was perfect. सिद्ध था, He was the miracle worker. और वो चमत्कार करने वाला था। He died for our sins. वो हमारे पापों के लिए मरा, He rose again from the dead. वो मृत्यु से फिर से जी He उठा defeated death. और उसने मृत्यु को हराया।
And there's a big difference. तो यहाँ पे बहुत बड़ा अंतर है। So here's the difference. Jesus is this person, unique in his own way. तो यहाँ पे अंतर ये है कि यीशु जो है वो खुद के ही तरीकों में सबसे अलग है। That's why Paul writes and he says, there is one mediator between God and man, the man Jesus Christ. तो इसीलिए पौलुस लिखता है और कहता है कि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही विचवई है, वो है यीशु मसीह। You don't have to go to somebody else. हमें किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। There's one mediator between God and man. और कहता है एक ही विचवई मसीह परमेश्वर और लोगों के बीच में। Then we see a loving God seeking a personal relationship with man. और उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो प्रेमी परमेश्वर है वो एक रिश्ते को ढूंढता है मनुष्यों के साथ। Let me tell you this difference here again. तो यहाँ पे अंतर हम देखेंगे फिर से। In other religions, और बाकी के धर्म में man is trying to reach God. जो मनुष्य है वो परमेश्वर की ओर पहुंचने का प्रयास कर रहा है। They're trying to reach God to make God happy. वो परमेश्वर को खुश करने के लिए वहां पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। But in Christianity, as Christians, लेकिन मसीह में, मसीह होने के नाते God is reaching to us. परमेश्वर हमारे पास पहुंच रहा है। Why is this important? क्यों ये महत्वपूर्ण है? Can we reach God? क्या हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं? Can we make God happy? क्या हम परमेश्वर को खुश कर सकते Can we हैं? change God's mind? क्या हम उसका मन बदल सकते हैं? Can we tell God, you have to forgive my sins? क्या हम ये कह सकते हैं कि तुम्हें मेरे पापों को क्षमा करना Or, ही है? God, I will give all my money to the poor. Will you forgive my और sins? कि मैं मेरा सारा धन गरीबों में दे दूंगा, क्या मेरे पापों की क्षमा करेंगे? All that won't work. ये सारा कुछ काम नहीं करेगा। All that works is when God is reaching out to man. और जितना भी जो है काम करता है वो है कि परमेश्वर मनुष्यों तक पहुंच रहा है। That is why Jesus came into this world to live like us. इसीलिए यीशु मसीह संसार में आया हमारे और आपकी तरह जीने के लिए। So there's a big difference तो that we have. यहाँ पे बहुत बड़ा अंतर जो है हमारे पास Then है। we see that in Hinduism, उसके बाद हम देखते हैं हिंदू there में, is self-realization, self-discipline. और यहाँ पे ये होता है आत्म अनुशासन होता है और आत्मबोध होता है। That means I myself realize, okay, I have done my part as a Hindu and I feel I am holy. तो वो खुद से ऐसा कहते हैं, मुझे महसूस है कि मैंने मेरा काम कर दिया, मैं पवित्र हूँ। Or they may go up the mountain and pray and meditate for maybe 5 years and say, okay, now I've reached self-discipline. तो किसी पहाड़ पे जाके वो 5 साल वहां रह सकते हैं, प्रार्थना करेंगे, फिर आके कहते हैं कि अब मैं मेरा आत्मा अनुशासन में कर पा रहा हूँ। But this is all works लेकिन ये सारे कार्य हैं which will not change a person's heart. जो कि किसी मनुष्य के हृदय को नहीं बदलते। Jesus, on the other hand, यीशु दूसरी साइड पे he is able to transform people's lives. वो लोगों के जीवन को परिवर्तित करने के योग्य है। He's not saying we should not be disciplined. We should be disciplined. वो ये नहीं कह रहा कि हमें अनुशासित नहीं होना We चाहिए, should work hard. हमें कठिन मेहनत करनी We चाहिए, should give our best in everything that we're doing. हमें हमारा सबसे बेहतर देना चाहिए जो भी हम करते हैं। But we are not going to Christ because of our own works. लेकिन हम मसीह के पास हमारे कार्यों के कारण नहीं जा रहे हैं। Jesus doesn't change us because we are doing all good things. No. यीशु मसीह हमें इसीलिए नहीं बदलता कि शायद हम सारे अच्छे कार्य कर रहे हैं। Jesus is changing us because we are his children and he wants to teach us, train us, guide us. यीशु मसीह हमें इसीलिए बदल रहे हैं क्योंकि हम उसकी संतान है, वो और हमें सिखाना चाहते हैं, हमें तैयार करना चाहते हैं। So these are some of the main differences between Christianity and Hinduism. तो ये कुछ मुख्य अंतर है हिंदू और मसीहत के बीच में। Now remember, when you're speaking to a Hindu, don't make fun of their gods or don't make fun of their religion and their belief system. तो याद रखिए कि जब आप किसी हिंदू से सेवकाई के लिए जा रहे हैं तो उनके जो भगवान है, उनके धर्म है, उनका मजाक ना उड़ाएं। Be loving, be patient. बहुत ही धीरजवान रहें और प्रेमी रहें। Then we see how we can minister to Muslims. तो उसके बाद हम देखते हैं कि एक मुसलमान से हम कैसे बात कर सकते हैं। Firstly, get to know what they believe. तो पहली बात इस बात को जाने कि वो क्या विश्वास करते हैं। Each Muslim can be different. और हर एक मुसलमान अलग अलग हो सकते There are हैं। traditional Muslims, there are modern day Muslims. यहाँ पे कुछ धार्मिक रूप से मानने वाले मुसलमान हैं और कुछ आज के समय के, Different kinds of Muslims. तो अलग अलग प्रकार के। Right? Establish a friendship with them if you can. और यदि आप दोस्ती बना सकते हैं वहां पे तो दोस्ती बनाएं। Now, 3 things they would normally question about Christianity.
तो 3 बातें वो साधारण रूप से जिसे प्रश्न करेंगे मसीहत के बारे में। How can Jesus be God? यीशु मसीह कैसे प्रभु हो सकता है? They don't like that. वो इसे पसंद नहीं करते। They hate that when we say Jesus is God. वो इस बात से नफरत करते हैं जब हम कहते हैं कि यीशु परमेश्वर है। Because how can God have a son? कि कैसे परमेश्वर का पुत्र हो सकता है? They question his deity. और वो उसकी जो ईश्वरता होता है उसको क्वेश्चन करते हैं। Then they will ask whether Jesus really died on the cross. और अगला सवाल वो पूछते क्या सच में यीशु क्रूस पे मरा? Maybe he didn't die. और शायद वो नहीं मरा। Or maybe that was somebody else who took the form of Jesus and died on the cross. और शायद वो कोई और था जिसने यीशु का रूप लेके वहां क्रूस पे वो So आए। till now they believe that Isa did not die on the cross. They don't believe that Jesus died on the cross. तो आज तक वो ये विश्वास करते हैं कि जो यीशु है वो क्रूस पे नहीं मरा। But they believe that Jesus will come again to judge the living and to judge the people. लेकिन वो ऐसा विश्वास करते हैं कि यीशु फिर से वापस आएगा और जीवित और मृत्यु को न्याय करने के लिए। Another question they will ask is, since he didn't die, that means he did not rise again from the dead. There's no resurrection. तो अगला प्रश्न वो ये पूछते हैं क्योंकि वो नहीं मरा तो वो मृत्यु को में से जी भी नहीं उठा होगा। So these are the main questions they have for us. तो यही जो मुख्य प्रश्न हैं जो उनके पास होते हैं हमारे लिए। Now, if you are in a place where you are going to minister to people who are Muslims, you have to be able to give a simple answer for these kind of questions. तो यदि आप किसी ऐसे स्थान पे हैं जहाँ आप किसी मुसलमान से वहाँ उनकी सेवा करने जा रहे हैं तो आपको इन सारे सवालों का जवाब पता होना चाहिए। Now, let's look at the differences in these two religions. तो आइए हम देखें अब इन वहाँ पे अंतर को इन दोनों धर्मों में। Yeah, Muslims and Christians. और जो मुसलमान और मसीह में। What is the nature of God in Christianity? और मसीह में परमेश्वर का प्रकृति क्या है? He's a loving God. वो प्रेमी परमेश्वर है। He's a God who is almighty. वो परमेश्वर है जो बहुत सामर्थशाली है। Right? And we can have a relationship with this great God. और इस महान परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता हो सकता है। But in Islam, in Islam, लेकिन इस्लाम में you cannot have a relationship with this God. तुम्हारा रिश्ता एक परमेश्वर के साथ नहीं हो सकता। You cannot have a relationship. कोई रिश्ता नहीं हो सकता। Because God is in heaven. क्योंकि जो परमेश्वर है वो स्वर्ग में है। And I can't have a relationship with this God. और मेरा रिश्ता नहीं हो सकता उस परमेश्वर के साथ। What about sin? पाप के बारे में क्या? We know that if we believe in Jesus Christ, our sins are forgiven. तो हम जानते हैं कि यदि हम मसीह में विश्वास करें तो हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। But for Muslims, लेकिन मुसलमानों के लिए sin can only affect people. जो पाप है वो केवल मनुष्यों पे ही प्रभाव डालता It है। cannot affect God. वो परमेश्वर को प्रभाव नहीं डालता। But in Christianity again, लेकिन मसीहत में फिर से when we sin, our relationship with God is hurt. जब हम पाप करते हैं तो जो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है वो खराब होता है। The Bible says, do not grieve the Holy Spirit. Don't make him sad. पवित्र बाइबल ऐसा बताती है कि पवित्र आत्मा को ना दुखाओ। Right? Then we see forgiveness. और उसके बाद हम देखते हैं क्षमा। We all have forgiveness of sins in Christianity. और मसीह में हम सबके पास हमारे पापों की क्षमा This है। is assured forgiveness, confirmed you are forgiven. और ये पक्की बात है कि हम क्षमा किए जाते हैं। But what about Islam? और इस्लाम के बारे में क्या? They have a place where you have to go. It's called the Hajj. और उनके पास एक ऐसा स्थान है जहाँ उन्हें जाना होता है। They have to go there. वहाँ उन्हें जाना होता है। They have to pray to their God. वहाँ उन्हें अपने परमेश्वर से प्रार्थना करनी होती है। And they have to do this religious trip at least once in their life. और उनके जीवन काल में उन्हें कम से कम एक बार ये यात्रा करनी And होती only है। then God will think about forgiving their sins. और तभी शायद एक परमेश्वर उनके पापों को क्षमा करने के बारे में सोचेगा। That also they're not sure. वो भी उस बात से वो पक्के नहीं हैं। Even now, और आज भी if you ask any Muslim, और यदि आप किसी मुसलमान को पूछें are your sins forgiven? क्या आपके पाप क्षमा किए गए हैं, They'll say, I don't know. तो वो बोलेंगे मैं नहीं पता। You ask any Muslim, are you going to heaven? किसी मुसलमान को पूछे क्या आप स्वर्ग में जा रहे हैं, They'll say, I don't know. वो बोलेंगे नहीं पता। Now, I'll ask you, are you going to heaven? तो क्या हम आपको पूछे आप स्वर्ग में जाएंगे? How you know? कैसे आप जानते हैं? Bible says that, बाइबल बताती है। right? No. No. यीशु पर Yes, thank विश्वास you. करने के द्वारा Yes, thank you. Thank you. Yes. All of us, anyone has a doubt here?
और यहाँ पे बैठे हुए किसी को शंका है? If you die tomorrow, don't get scared, okay? यदि आप कल आपका मृत्यु हो जाती है, Are you sure you'll go to heaven? क्या आप इस बात का पक्के हैं कि आप स्वर्ग में जाएंगे? Don't say, Pastor, don't talk about death. तो ऐसा मत बोलिए पास्टर जी, मृत्यु के बारे में बात ना करें। Answer the question. जो हमारा सवाल है उसका जवाब दें। If you die, you and I, यदि आप और मैं हमारी मृत्यु हो, are we 100% sure we will be with Jesus? क्या हम 100% कह सकते हैं कि हम यीशु के साथ होंगे? Yes? 100%? 100%? 100% sure. 100%? Very good. बहुत बढ़िया। That's the greatest joy we must have. यही सबसे बड़ा आनंद है जो हमें होना चाहिए। Now, you don't have to do anything for it. तो इसके लिए आपको हमें अब कुछ करना नहीं है। You don't have to say, oh, Jesus will not say, okay, you don't know the book of Revelations, तो so no entry to heaven. ऐसा यीशु मसीह नहीं बोलेंगे, तुम प्रकाशित वाक्य की किताब को नहीं जानते तो स्वर्ग में आपका प्रवेश नहीं है, Or you're a believer only for 5 days, Or- no entry to heaven. और आप सिर्फ 5 दिन से ही विश्वासी हैं तो इसीलिए स्वर्ग में प्रवेश नहीं है। We enter into heaven because we have become believers. ऐसा कुछ नहीं है। हम स्वर्ग में इसीलिए प्रवेश करते हैं क्योंकि हम विश्वासी बन चुके But हैं। in Islam, और इस्लाम में a person can be faithful for 40 years, 50 years, all their life. और एक व्यक्ति जो है वो चाहे 50 साल वो विश्वास योग्य रह सकता है, Even on his deathbed. लेकिन उसके मृत्यु पर होने के बाद भी Are you going to heaven? तो आप उससे पूछे कि आप स्वर्ग में जाएंगे? I don't know. हमें नहीं पता। See the difference? तो आप अंतर देख रहे हैं। In Christianity, we have faith that if we die, we will go be with heaven. तो मसीह में हमारे पास ये विश्वास है कि यदि हमारी मृत्यु हो तो हम स्वर्ग जाएंगे। Then we talk about the fatherhood of God. तो उसके बाद हम परमेश्वर का जो पिता का स्वभाव है उसके बारे में बात करते हैं। In Islam, the relationship between God and man is not as a father and a son, So or it- father and a daughter. जो इस्लाम में जो उनका रिश्ता है उनके परमेश्वर के साथ, वो एक संतान और पिता के जैसा नहीं होता। What did Jesus say? यीशु मसीह ने क्या कहा? I am in the Father and the Father is in me. मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। If you have seen me, you've seen the Father. यदि तुमने मुझे देखा है तो तुम पिता को देख चुके हो। Now, later on in the book of Romans, Paul says, through the Holy Spirit, we can cry out to him, Abba, Father. और बाद में जो रोमियो की पत्री है उसमें पौलुस लिखता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम उसे अब्बा पिता कह के बुला So सकते we हैं। have a Father in heaven. तो हमारे पास हमारा पिता है स्वर्ग में। We all say the Lord's Prayer, Our Father in heaven. तो हम सब जो प्रार्थना उसे कहते हैं हमारे पिता स्वर्ग में है। When a son calls his father, जब कोई बेटा अपने पिता को बुलाता there's a है relationship. तो वहां पे एक रिश्ता होता है। A son is always loving to the father. और जो एक पुत्र होता है वो हमेशा अपने पिता की ओर प्रेम करता The है। father is willing to give his life for the son. और जो पिता है वो अपने पूरे जीवन को देने की भी इच्छा रखता है अपने पुत्र के लिए। See, before I was married, और पास्टर जी शादी होने से पहले, John 3:16, all of us know. और यूहन्ना 3:16 हम सब जानते हैं। Yes? हाँ, What is it? क्या कहता है? By faith, I believe you said the right verse. तो विश्वास के द्वारा हम ये विश्वास करते हैं कि आपने सही वचन बताया। I used to say it so many times. I preached it many times. तो इस वचन को कई बार प्रचार भी किया, बहुत बार बोलते थे। But there came a time when I had my son, लेकिन उसके बाद ऐसा समय आया कि इनका पुत्र हुआ and I read that verse. और फिर वो वचन पढ़ा God so loved the world, he gave his son. कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र Can दे I दिया। give my son? क्या मैं मेरे पुत्र को दे सकता Never. हूँ? कभी नहीं। But I understood the love of the father. तो तब वो पिता का प्रेम है वो समझ में आया। First it was knowledge. पहले वो ज्ञान था, Then it became revelation. उसके बाद वो प्रकाशन बन गया। And the same thing for us. और As believers, we have a father in heaven. और उसी तरह हमारे लिए हमारे जीवन में हमारे पास हमारा पिता है। He loves us. वो हमें प्रेम करता He है। will correct us. वो हमें चीजों को सही He सिखाता है। will take us through difficult situations. वो हमें कठिन परिस्थितियों से भी लेके चलता है। See, when my son was learning cycle, और जब पास्टर जी का जो बेटा है वो साइकिल सीख रहा I'm था, watching him learn the cycle. तो वो देख रहे हैं कि वो साइकिल सीख रहा है। He fell down. वो गिर पड़ा, He got hurt. और उसे चोट लगी। I ran and I helped him. तो दौड़े, उसे मदद किया। And then I said, continue cycling.
तो फिर बोला कि फिर से इसे सीखना जारी रखो। What if I said, no, 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 तो you यदि got hurt, so sad, और यदि ये बोला होता कि नहीं नहीं मत सीखो, तुम्हें चोट लगी है, go sit in the house, जाके घर में बैठो, don't worry. चिंता मत करो। What if I had done that? क्या अगर ये ऐसा किया होता तो Will he learn the cycle? क्या वो साइकिल सीख पाता? Yes or no? हाँ या नहीं? If I say, don't, okay, you got hurt, you don't learn cycle, it's okay. और यदि ये कहा होता कि तुम्हें चोट लगी है, नहीं साइकिल मत सीखो, जाओ, Then again he'll fall. और फिर से वो गिरेगा, Again he'll get up. और फिर से वो खड़ा होगा। Then there came a time तो एक समय फिर ऐसा आया, when they fell down, I didn't go. और जब वो गिरे तो पास्टर जी नहीं गए, I'm just watching. सिर्फ देख रहे हैं। Watching to make sure, see what will happen. तो देख रहे हैं कि वहां पे क्या हो रहा है। First few times I helped him. तो कुछ समय में, जो कई बार समय हुआ, तो उन्हें मदद की, After some time I didn't help him. और कुछ समय के बाद फिर मदद नहीं की। Let him only get up. उसको ही खुद खड़ा होने Let दे, him only ride the cycle. उसको ही खुद साइकिल चलाने Now, दें। does it mean I don't love them? तो इसका son? मतलब ये है क्या मैं मेरे पुत्र को प्रेम नहीं करता? Does it mean I don't love him? क्या ये मतलब है मैं प्रेम नहीं करता? No. I want him to become strong. I want him to learn new things. मैं चाहता हूँ कि वो नई नई चीजों को सीखे, वो मजबूत बने। If he doesn't learn, then it's my problem, it's my fault. और यदि वो नहीं सीखता है तो ये हमारी गलती होगी। If he doesn't fall, he will never learn. और यदि वो नहीं गिरेगा तो कभी नहीं सीखेगा। Same way, God will allow us to go through situations. उसी तरह परमेश्वर अनुमति देता है कि हम परिस्थिति होकर गुजरे, And because we're going through the situation, sometimes we'll say, God, why are you doing this to me? और जब कभी हम कठिन परिस्थिति से होकर गुजरते तो हम कहते हैं क्यों परमेश्वर मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। We may fall down also. हम गिर भी We जाएंगे, may get hurt. हमें चोट भी लगेगी, But the Father is still looking. लेकिन पिता फिर भी देख रहा है, I'm there to help you. और वो कह रहा है मैं हूँ तुम्हारी I'll मदद give करने you the के लिए, strength. मैं तुम्हें ताकत दूंगा, I'll give you the grace. मैं तुम्हें अनुग्रह Get दूंगा, up again. फिर से खड़े हो जाइए। If a loving Father can do that, यदि प्रेमी पिता ऐसा कर सकता है, a heavenly Father also can do more than that. तो जो हमारा स्वर्गीय पिता है वो उससे कई गुना बढ़ के कर सकता है। But in Islam, लेकिन इस्लाम में there is no concept of father and son. इसमें पिता और पुत्र का कोई भी वहां पे जिक्र नहीं होता। There's no concept of I'm a child of God. वहां पे कोई भी ये जिक्र नहीं होता कि हम परमेश्वर की संतान हैं। God, if Allah decides, then I will go to heaven. If not, no problem. यदि अल्लाह ने ये निर्णय लिया है तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा, यदि नहीं तो कोई बात नहीं। And these are the big differences that we have. तो यही वो अंतर हैं जो हैं हमारे बीच में। So whoever you're ministering to, तो जिससे भी आप सेवकाई कर रहे हैं उनके पास I'm not जाके, saying you have to learn everything about their religion, तो हम ये नहीं कह रहे कि उनके धर्म के बारे में आपको सब कुछ सीखना है, but try to find out what kind of culture that person has. लेकिन ये ढूंढने का प्रयास करें कम से कम कि किस प्रकार की संस्कृति से वो है, What is their belief system? वो किस बात में विश्वास करते हैं। And then you'll be able to understand and reason effectively. तो तब हम प्रभावशाली वहाँ समझ पाएंगे और वहाँ पे तर्क कर पाएंगे। Okay? ठीक है। Now, I know there's other religions, like in India especially, there are so many other religions like Buddhism and Sikhism and so many religions. तो हम ये भी जानते हैं कि भारत में बहुत और कई भी सारे धर्म हैं, जैसे बुद्धिज्म और सिख लोगों का। Right? So we can't touch all the topics. तो हम उन सारे विषयों को नहीं अभी बढ़ But सकते, whichever religion they are in, लेकिन कोई सा भी धर्म हो, you go and try to find out about their religion and be able to communicate and understand and reason. तो जाइए और उनके धर्म को जानकर, उनकी चीजों के बारे में जानकर वहाँ पे उन्हें सिखाने का, समझाने का कोशिश But करें। here's the point. लेकिन यहाँ पे बिंदु ये है, Don't stop yourself from sharing the gospel. खुद को ना रोके सुसमाचार बांटने से। You have to push yourself. हमें खुद को आगे बढ़ाना है। Right? You have to come out of your comfort zone. तो जो हमारा सुविधाजनक वहाँ पे स्थान है, हमें उससे बाहर निकलना है। If we are always comfortable, what will happen? Will we grow? तो यदि हम हमेशा आराम से जहाँ पे है वहीं रहना चाहते तो क्या हम बढ़ेंगे? Yes or no? हाँ या नहीं? After first standard, you'll go to second standard. तो जब पहली क्लास है उसके बाद दूसरी क्लास में जाएंगे। When you reach grade 5, जब आप 5वीं क्लास में पहुंचेंगे can you tell them, no, grade 1 was better. Can I go back there? तो क्या आप उन्हें कह सकते हैं नहीं पहली क्लास अच्छी थी, क्या मैं वहां पे वापस जा सकता हूँ? As you go higher grade, more the studies, तो जैसे ही आप ऊंची ऊंची क्लास में जाते जाएंगे उतना ही ज्यादा पढ़ना होता है, more the effort, बहुत ज्यादा मेहनत देनी होती है। right? And more you have to come out of your comfort zone. तो उससे और ज्यादा ही हमें हमारे जो सुविधाजनक स्थान है वहां से वापस निकलना होता है। Listen,
तो सुनिए, we talked about this. God responds to hearts that are hungry. तो हम ऐसे देखते हैं कि परमेश्वर उन लोगों का जवाब देता है जिनका हृदय भूखा होता है। Abraham was hungry. अब्राहम भूखा था, Moses was hungry. मूसा भूखा था, Joseph was hungry for God. यूसुफ परमेश्वर के लिए भूखा था, David was hungry for God. दाऊद परमेश्वर के लिए भूखा था। Look at the New Testament. All these people, all these apostles, and the way they did ministry, they were so hungry for God. तो नए नियम में भी जब हम देखते तो सारे प्रेरित जिस प्रकार से उन्होंने सेवकाई वो परमेश्वर के लिए भूखे थे। God responds to hungry hearts. परमेश्वर भूखे हृदय को जवाब देता है। If you and I are not hungry, यदि आप और मैं भूखे नहीं हैं, not for food, खाने के लिए नहीं, but hungry to know more of God, परमेश्वर के बारे में जानने के लिए वो भूख, then God will still love you. परमेश्वर फिर भी आपको प्रेम करेगा, God will still bless you. परमेश्वर फिर भी आशीष देगा, God will still protect you. He'll do everything. फिर भी आपकी सुरक्षा करेगा, वो सब कुछ करेगा, But He won't be able to use you. लेकिन वो आपको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। How many of you want to be used by God? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे? Yeah. Because for that, you'll have to step out of your comfort zone. क्योंकि उसके लिए आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा, आपके जगह से बाहर निकलना पड़ेगा। Okay? ठीक है, Okay, we'll take a break and come back and then we'll pick up from chapter 9. तो आइए हम ब्रेक लेंगे, फिर वापस आके शुरू करेंगे।